गेम खत्म हुआ and I was just standing there and being like, what am I doing with my life? क्या कहते हैं एतिहाद स्टेडियम के अंदर पेप गार्डियोला ने पूरा ऐसे दिखवाया, पूरा झाड़ फूक कराया. कब तक आप फोर प्ले करोगे? Right, so there is no release here. And if it happens twice this season, can you imagine what euphoria they will feel? Never about how you start. It's always about how you finish the game. And the leagues depend on them. आर्सेनल की ट्रॉफीज है ये 2004-5 से लेके अभी तक प्रीमियर लीग टाइटल्स. मैं बता रहा हूँ यमाल वॉज इन हिज फादर्स नटसैक. I saw y'all dancing. Y'all want City to win. Your rivals have some goddamn bollocks. कोई भी इंसान रहेगा जो अपनी लाइफ में गिरा हुआ रहेगा, उसको सुनाने के लिए एक स्टोरी है, मतलब कि 5000:1 ऑड्स, मतलब उस ऑड्स पे वो क्लब खेल गई. बायर्न म्यूनिख का एक नया नैरेटिव सेट हो गया था आफ्टर बीटिंग रियल मैड्रिड दैट दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, बट दे आर नॉट द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. बर्नार्डो सिल्वा इनफैक्ट सेड कि भाई कंपनी कैन इवन बिकम अ प्रेसिडेंट. Police कभी नहीं जीतेगा because he is not sexy enough image wise. Which team plays their matches in the Mestalla? वेलकम एवरीवन, एपिसोड 32 ऑफ द राइवलरी रूम. बहुत ही गर्मी आ गई यहाँ पे, लेकिन गर्मी से थोड़ी हमें रिलीफ करने के लिए कुछ हैं ड्रिंक्स हैं यहाँ पे. ड्रिंक्स, बट ये यानी ये गलत ड्रिंक्स है यहाँ पे. आर्सेनल के लोगों ने इसमें आर्सेनल का लोगो है. आई गॉट यू. ओह, ऑल राइट. But नहीं भाई, how are they top of the table here? इसलिए ऐसे लॉब किया नीचे रख दो. As I said, this is episode 32 of the rivalry room. पूरा सीजन निकल गया है, बहुत मजा है यहाँ पे. अब तक ला लीगा सेटल हो गए, यूसीएल से बड़े चैंपियंस आउट हो गए, लेकिन आर्सेनल ही रहेगी फर्स्ट से सेकंड फॉर एवर परमानेंटली. हमारे क्रिएटर पैनल में है हर्षित भाई, प्रणय भाई एंड मानस. एंड इन आवर फैन पैनल आपका चाहिता बाबा बेबी अरे उर्फ सेकंड ऑलवेज फॉर एवर गनर ब्रायन. आई एम लीविंग इट फ्री फॉर ऑल गाइज. मैं बैठ जा रहा हूँ. प्रणय भाई, ब्रायन, गो फॉर इट. मैं क्या बोलूँ इसमें? आई थिंक आई वांट टू hear from him first. क्या लगता है ब्रो? You should speak second now. But let him. Okay. He's been speaking first for the last 207 days, na? Nah, man, I've got, at this point, what more do I say? There's nothing left. I mean, see, being honest, the last time I spoke, I told like, we lost 3 games, now make that 4. We have done more than what we did the entire first half of the season. So now, at this point, it's to Arteta and everybody like, hey, we have got 5 games in the Premier League. You have got your semi-finals, and if you qualify, you reach the finals. The next 8 games maybe decide what happens to Arteta at the end of the season. But I know for a matter of fact, the club is not going to let him go. If he leaves, it is out of his own choice. Because the club will be happy if a manager making them reach semi-finals and also finishing second. वाओ मैन, एक सेकेंड, मतलब एक हफ्ते के अंदर पूरे जज्बात बदल गए भाई. आर्टेटा बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड से सैकिंग की बातें हो रही है भाई. ये 119 पे 2 थे. नहीं, पर तुम लोग चैंपियंस लीग में तो जीत सकते हो ना. और क्या? No, so that's what I'm saying. Now, that's why I said the next 8 games decide everything for us. At one point, you're like, okay, if he reaches the final, good. But you'll always be hurt that if he finishes second in the Premier League, you'll be pissed off as a fan, you'll be sad as a fan, but then, okay, fine. I'm talking to the hierarchy, be happy ki, hey, Arteta reached this, he did our job, congratulations, good, you deserve a new contract. Really? What happened? Really? You think? Yeah, I think obviously the club will tell if you finish second in the league, you make a lot of money. And if you finish, if you reach the semi-finals back-to-back, which has not been done in our club, on paper it looks good. As a fan, you'll not be happy. There could be a high chance. Before Brian, why are you talking like a businessman? As a fan, मैं समझ रहा हूँ, तू एक ओनर की तरफ से बात कर रहा है कि नया कॉन्ट्रैक्ट, बट तू राइवलरी रूम में है. बट आप भी तो लिवरपूल एज अ फैन बोलना कि तेरे को कितना दर्द हो रहा है, वही तो सुनना है अपन. हमको कितना पैसा बैलेंस शीट में क्या हुआ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई. सही में बोलू ना तो बहुत दुख हो रहा था. यही तो सुनना है, यही तो. लेट्स गो भाई, लेट्स गो. नहीं देखा. और बताइए. और गेम खत्म हुआ
and I was just standing there and being like, what am I doing with my life? And then I looked. सब जगह मैंने देखा. Every single fan at the screening was sad, disheartened, very disheartened. Everybody was just looking at each other and giving each other hugs. कि होता है. But अभी उसके बाद, the minute you reach home, you're like, इतना गाली देना है. You feel angry. You feel sad. All 5 stages of grief got over in that night only. And then you wake up in the morning and you're like, चलो, 5 games are left. Let's see what they can do. And we leave it at that. आप तो खुश हो. आपने लास्ट टाइम यहाँ ये मंच पे बोला था कि हम अगर जो कंटेंशन में आए भी ना तो probably will be one of the worst league wins ever, right? And Yeah. I don't care, long as you win, doesn't matter. Yeah. But are you genuinely shocked that you're here? To be honest, I think वो फैन का होप होता है कि चलो हाँ. 5% hope is there, but are you genuinely shocked कि fuck actually you're the first technically? so. I think the last episode of Rivalry Room that I did, उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि Carabao Cup decides everything and Game Week 38 तक टाइटल जाएगा. ये दो चीजें मैंने बोली थी कि चाहे जितना भी आगे हो, जितना भी पॉइंट्स में जितना भी आगे चले जाए आर्सेनल, आई थिंक द गेम वीक 38 इज गोना डिसाइड द विनर. वो जाता हुआ मुझे दिख रहा है पहली प्रेडिक्शन. एंड द सेकंड, आई थिंक कैराबाओ कप में like that was I was discussing with him, you know, before. It was not about losing. Like Arsenal हार जाती मैच, एक competitive game होता, you know, 3-2, 3-3, 4-3, whatever the score line it have been. जिस तरह से मैन सिटी ने लाइक पेप गार्डियोला ने आउटप्ले करा ना आर्टेटा को, आई थिंक दैट जस्ट वो मेंटल ब्रेकडाउन आर्टेटा के चेहरे पे था फुल टाइम पे. इफ यू गो एंड सी द फुटेजेस, इमेजेस, एंड यू सी दैट ऑन द प्लेयर्स फेसेस. चाहे भले ही अब लोग ये बोले कह रहे वो फर्स्ट टीम नहीं थी, सिटी की भी फर्स्ट टीम नहीं थी भाई, हमारे भी रिजर्व प्लेयर्स ही खेल रहे थे, बट दैट टैक्टिकल जिस तरह से आउटप्ले कर दिया, आई थिंक दैट जस्ट डिसाइडेड. एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू सी द सेकंड, आई थिंक बिफोर जब हमने एक महीने पहले राइवल रूम करा था, तो आई वुड हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि भाई हम आर्सेनल के अगेंस्ट जाके हम लोग जीतेंगे. You know, like everyone was counting Arsenal as the favorites. I mean, you're top of the Champions League, you're crushing it everywhere, you're top of the Premier League. तुम हर जगह हो भाई. After that, वो first leg UCL का भी सिटी का रिजल्ट था. Everywhere, and we just got knocked out from Madrid. You know, like brutally, man. I think हम 5 गोल खा के हम जिस तरह से बाहर हुए लास्ट में, किसी को भी नहीं लग रहा था. But having एक महीने के अंदर जो नैरेटिव एकदम से चेंज हुआ, when even before the City Arsenal Premier League game, I was very confident because we beat Liverpool. I think Arne Slot को भी हमने 4-0 हराया, फिर हमने चेल्सी को हराया. These games matter, man. And वो momentum जिस तरह से एकदम से पिकअप हुआ ना, मैं ये चीज़ बोली भी थी. I think after the Madrid loss, कुछ ना कुछ जैसे आपने बोला ना कि नींबू या कुछ, I think कुछ क्या कहते हैं, एतिहाद स्टेडियम के अंदर पेप गार्डियोला ने पूरा ऐसे दिखवाया, पूरा झाड़ फूक कराया, और उसके बाद आई थिंक मैच के बाद उन्होंने कुछ बेटर करा उसके बाद. द प्रॉब्लम विद, आई थिंक जो भी मुझे लग रहा है कि द प्रॉब्लम विद पेप मेंटालिटी एंड माइकल आर्टेटा मेंटालिटी, लास्ट टाइम जब मैं शो पे आया था तब भी मैंने बोला था कि पेप की मैन सिटी ब्रोकन नहीं है, वो एक्चुअली स्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है. एंड कई बार स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि प्लेयर्स को इंडिविजुअली आउट परफॉर्म करना पड़ता है. एंड लास्ट टाइम जब आर्सेनल के अगेंस्ट मैच हुआ था, वहाँ पे सिटी ने आउट परफॉर्म किया, इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखी हमें, हालैंड का वो हंगर दिखा. एंड दैट मोमेंट, वहां से एक चीज बहुत अच्छे से प्रूव होती है, इट्स नेवर अबाउट हाउ यू स्टार्ट, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ यू फिनिश द गेम, एंड द लीग्स डिपेंड ऑन दैट. Let it all work out. Let it all work out. मैं बता रहा हूँ, मैं गूगल किया आर्सेनल के लॉस के बाद कि फन फैक्ट्स फ्रॉम 2003 and 4. वहाँ पे मुझे फन फैक्ट्स के अंदर दिखा आर्सेनल इनविंसिबल. समझ रहे हो? द ट्रॉफी दैट टाइम वाज आल्सो फनी आर्सेनल के लिए. और दूसरा एक और है पोस्टर मेरे पास, वो मैं बार बार दिखाने के लिए थक नहीं रहा हूँ. आर्सेनल की ट्रॉफीज़ है ये 2004-05 से लेके अभी तक, प्रीमियर लीग टाइटल्स. मैं बता रहा हूँ, यमाल वॉज इन हिज फादर्स नट सैक व्हेन आर्सेनल लास्ट वन द लीग. और बताता हूँ, अगर मम्मी किसी को बोलती है अपने बच्चे को, बेटा जा रेस जीत के आना, और रेस में फर्स्ट प्लेयर जीत चुका है, सेकंड आने की रेस चालू है, सेकंड थर्ड में कौन सेकंड आएगा, उसमें भी आर्सेनल सेकंड आता है. क्या करूँ? Like they famously say, if there's one club who comes second in a one-horse race, it's Arsenal. but I think एक चीज़ मेरे को mention करनी है. I think so जितने भी fans हैं यहाँ पे, ठीक है, and I'll come to the creators also. Like why everyone was talking about, you know, ill talking about Arsenal, because their fans brought it on themselves. Like यहाँ पे एक भी बंदा ये नहीं बोलेगा कि यार ठीक है टीम का लेके या किसी भी चीज़ को भी लेके, यहाँ पे जितने भी फैंस हैं, कितने लोग यहाँ पे बोलेंगे कि आर्सेनल फैंस आर
इंटॉलरेबल। कितने लोग यहाँ पे मानते हैं इस चीज को? इंटॉलरेबल। Saka is better than Bassi. मैं भी यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बैठा हूँ भाई, बिकॉज द सेम पीपल हु आर लाफिंग कि भाई अभी आर्सेनल नहीं जीती, ये देखो बॉटल, और उसके बाद यू नो ऑल द मीम्स दैट आर बीइंग शेयर्ड। आई डोंट वांट टू बी इन द सेम पोजीशन एज अ सिटी फैन और यू नो ऑन द फैन बेस कि भाई हमारा भी उस चीज पे मजाक बने। सो ठीक है, आई एम हैप्पी टू द फैक्ट दैट दिस इज तू ही बनाता है। गो डाउन तो आपका ही है। This ये साला I'll add one thing. I tried to find that clip of the Arsenal fan telling that Saka's better than Messi. It was some rando guy from one random live stream. And I am like, who is this guy? Even I don't know that. You're like, ha, bhai, every Arsenal fan thinks the same. Arey bhai, humne kabhi bola hai ye sab. But it is, I get it. It's the narrative. It is what it is. You have to make the narrative. Have fun. See, one thing which I'll say now. Half of the people online who are there and whoever's watching me now, you all have not been to the football stadium. Let's just put it out there. अमीरी दिखाते हुए। Amiri ne, Baba, you are in Mumbai, go for Mumbai City ka games. You see the fans over there. If you have even watched the game, over there the fans, you can see for the 90 minutes, they are chanting, cheering, hooting, they want to celebrate. You all want to have your online narrative? Have it, bhai. थोड़ा वहाँ पे देख लो, उसका चेहरा देख लो। Kiska? Nee, that's the point. See, for me, at this point, I've realized I see people at screenings. I know who are the people who support. बट आर्सेनल फैंस आर फनी यार। आई से दिस, एक मैं पोस्ट देख रहा था उसमें, अगेन लाइक नॉट इन अ डिसरिस्पेक्टफुल वे, वो आर्सेनल फैन क्लब ऑफ जिम्बाब्वे इज हैविंग अ मीटिंग, यू नो what should Arteta do next? Like what is it? Like it's genuinely funny. मतलब मेरे को ऐसा लगता है यार, and then you see random tweets coming in, Rice Ballon d'Or shouts, Saka better than Pele. तो मतलब यार ठीक है, it's all fun for it. The thing is, Arsenal fans internationally are very passionate, and now we have reached a point कि it's all everybody versus us. By the way, all the United fans, and I'm seeing you United like United ka this, what do you say, your Mumbai club. I saw you all dancing. Y'all want City to win. Your rivals have some goddamn bollocks, for crying out loud. Who the heck are y'all dancing over here on third place? Not you, but I've seen y'all, okay? Y'all are spreading your ass cheeks and kissing them ass. I see it. Where is your rivalry now, huh? Bhai, I have seen this. I saw another, I'll tell you now, I saw another, what, I remember Drogba also mentioned this. All the Chelsea fans who were celebrating that they lost to City now suffer. Not you. Now y'all have put, I'm not even converting, this guy is another case. No, not the bad case. But all those people, I am watching y'all. Trust me, all your United ka fan clubs in Mumbai, everywhere else. My eyes are We on are you. not Chelsea, we only have one in Mumbai. That one is also doing what? Putting content on Arteta only, na? Whoever wins the league, I know they are my rivals. Because we are first and second, and it is what it is. Y'all people, no, stay in your own race. How about that? Y'all reach your Champions League, y'all be happy. Y'all want to dance on the road, na. Dance at y'all won. Don't dance at City won, yaar. Then have to wonder what your fan club is actually about. Sahi mein. दिल जीत लिया भाई। And when it's a two people thing, now let us talk about each other. It's fine. Y'all enjoy, y'all want to get social media viewing, kar do bhai. For social media, y'all are doing, no. दिल के लिए कुछ कर रहे हो ना, then we'll see. ठीक है? स्विच ट्रैक्स, ला लीगा, मैड्रिड बारसा, ठीक है, पैसा नहीं था, फिर भी लीग 2 निकालने वाले, इनसेन अगेन। क्रेजी अचीवमेंट भाई। मैड्रिड नॉट हियर, बट मैड्रिड स्ट्रेंथन किया, सब किया, नहीं हुआ। Technically, in terms of consistency, for a split second, make it very serious conversation. Yeah. Arsenal technically the most consistent in terms of trying to keep up, trying to build a squad, trying to compete, right? Yeah. From all the English teams, outside of City. City's not in the conversation. Yeah, but the point is, there has to be a crescendo of something, na? There has to be, it's like foreplay. Crown something, crowning moment कुछ तो चाहिए इस पे. हाँ, कब तक आप foreplay करोगे? मतलब you have to get action. Into the action. Like you have to like, there has to be a release, right? So there is no release here. It's pent up frustration. So when it happens, and if it happens twice this season, can you imagine what euphoria they will feel? The point is, see, they have been very consistent.
very, very consistent, but they have to take the next step. You have to give them a lot of credit. The only way Arsenal मेरे हिसाब से City team को के साथ compete कर सकता था ये level पे was sticking with their project जो उन्होंने आर्टेटा के साथ किया है, and they have bought really well. उनकी squad अभी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है. There are a lot of players in every position, so they can win. भाई it's level on points, level on goal difference. Arsenal technically have to just win 4 या 5 बाकी है कितने? 5 but it's the same game. एक गोल ज्यादा मारना है. So there is no reason why Arsenal can't win. And I'm sorry, Arsenal played well against City. Yeah. In the league game. They had chances. Yeah. 2 बार Paul, Kai Havertz 1-on-1. ऐसा नहीं कि negative वो जो negative लोग बोल रहे थे. भाई they took the game to City. Last 6 minute तो भाई मेरे गोटे मुंह में थे भाई. टू बी ऑनेस्ट बहुत बुरा लगता है. इट्स फील वेरी बैड फॉर देयर फैंस ओनली, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फैंस की एक्सपेक्टेशन होती है कमिंग ऑन द सेकंड टेबल, बहुत सॉलिड कंसिस्टेंसी चाहिए. प्रीमियर लीग जैसे ग्राउंड पे सेकंड पोजीशन मेंटेन करना, चाहे लोग कुछ भी बोले कि यार सेकंड कुछ बड़ी बात नहीं होती. टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लिवरपूल को बीट करते हुए 200 प्लस मोर डेज तक वो टॉप पर हैं, बट स्टिल वो लूज करे तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो बॉटलिंग है ना वो मैन सिटी और उनके बीच में नहीं हुई थी. उस गेम से बॉटलिंग नहीं स्टार्ट हुई थी, बॉटलिंग पहले स्टार्ट हुई थी जहां पे आर्सेनल लूज करना स्टार्ट करी थी, ड्रॉ करना स्टार्ट करी थी. जो पॉइंट डिफरेंस काफी ज्यादा था उसको कम कर दिया. दैट इज उनके लिए डाउनसाइड हो गया, उनके लिए ही बैकफायर कर गया. एंड इंपॉर्टेंट इन द लीग फेजेस, जब भी हमें अगर लीग जीतनी होती ना, वी ऑलवेज स्टेट ऑन द पॉइंट डिफरेंस कि हमें भाई पॉइंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं. कहीं ना कहीं आर्सेनल ये भूल जाती है कि भाई हमने बीच में अच्छा परफॉर्म कर लिया, हमें लास्ट में भी वैसा ही करना है. दे मिस द चांसेस. वो इतना लूज गेम खेल देते हैं जिसकी वजह से उनके फैंस दुखी हो जाते हैं, एंड दैट इज अ रिजल्ट कि वो सेकेंड आ रहे हैं. बट आई जेन्युइनली वांट कि आर्सेनल जीते. मैं टू बी ऑनेस्ट मैं तो पता नहीं मेरी किस्मत कितनी खराब है. मैं जिस टीम को चाह रहा था कि वो जीते यूसीएल में, जिस टीम को चाह रहा था कि वो प्रीमियर लीग में जीते, वो सब हार रहे हैं एक्सेप्ट पीएसजी जीत गई थी. इतने टीम को मत सपोर्ट कर. सिटी को मत सपोर्ट करिए भाई. हमने ज्यादा आर्सेनल और सिटी की बात कर ली यहाँ पे. लॉन्गर देन सिटी हैज स्पेंट टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग टेबल. गुड वन. एनीवे, अगर जो आप कमेंट्स में डाल दो आपको क्या लगता है कि आर्सेनल फिर से बॉटल ये बार नहीं करेगी, ज़्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, अभी भी 2 कंपटीशन में है, अभी भी शायद चैंपियंस लीग में अभी कोई फेवरेट नहीं है, एंड दे आर स्टिल वन ऑफ द फेवरेट्स बिकॉज दे हैव डन देयर बिट इन द यूसीएल. Quickly here, touch up on Chelsea. Liam Rossin here, the 95th manager of the season, got sacked from the 75th club that Bluco owns. भाई मतलब क्या मतलब, ठीक है मरेस्का के लिए आपने जस्टिफाई कर दिया कि ठीक है चलेगा, उसने ये किया. Now would you take Maresca back looking at what's happened? Absolutely, I'll take Maresca back. मैं तो फ्रैंक लैम्पार्ड को भी ले लो वापस. मतलब कॉवेंट्री के साथ चमत्कार कर दिया, आप लोगों के साथ नहीं हुआ ना. लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, रोसिनियर जैसा मैनेजर. एनी इफ़ यू गो 5 games 5 लॉस 0 गोल स्कोर, तुमके पास वो है, तुम वो पोजीशन में नहीं हो कि कुछ डिमांड करे कि हाँ हमको ये चीज़ स्टैंडर्ड सेट करे. वो पोजीशन में हो ही नहीं. तो अभी रोसिनियर से बेटर जो भी है, जिसे मेवर ब्रायन भी होंगे, लाओ अभी कर दो खड़ा. नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि इट्स वेरी इजी टू ये बहुत सेफ टेक हो गया आपका कि सारी गलती मैनेजर की है, टीम की गलती नहीं है, डिसीजन की गलती नहीं है? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट एक मैनेजर को अपॉइंट किया गया है. चेल्सी बैड खेल रही, बहुत पुराना, बल्कि बहुत बुरा खेल रही है. लास्ट 5 गेम में 0 गोल्स स्कोर किया, दैट इज अनबिलीवेबल किसी के लिए भी. बट एक मैनेजर को सैक किया, और जो एंजो मैरेस्का वाला सीन था उसके बाद भी सैक किया. इतनी ज़्यादा सैकिंग के बाद आपको कहीं ये नहीं लगता है कि जो पूरा हेड मास्टर है चेल्सी का, वो गेम को कहीं ना समझ नहीं पा रहा है, फुटबॉल को नहीं समझ पा रहा है कि फुटबॉल ऐसे नहीं चलता, किसी को टाइम देना पड़ता है, सेटअप बनाना पड़ता है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है. क्योंकि आई थिंक जितना मैंने अभी तक पढ़ा है अबाउट चेल्सी, इट्स 1 बिलियन डेप्थ के अराउंड हो रहा है. अगर ओनरशिप जाएगी या सेल भी होगा तो क्लब के अराउंड कोई फ्यूचर क्यों बिल्ड करना चाहेगा, कोई बड़ा मैनेजर क्यों आना चाहेगा, कोई बड़ा प्लेयर क्यों अपना फ्यूचर डिपेंड करेगा चेल्सी पे, जबकि सब डार्क दिख रहा है. व्हाट अबाउट योर? No, absolutely. You've hit the nail with this. So, obviously, club top to bottom, each level पे is in shambles. तो किसी को नहीं पता, everyone is clueless कि क्या हो रहा है. And manager तो मैं बोलूँ, it's just a symptom of the problem, you know. Problem तो काफ़ी बड़ा है. Manager, players, owners की बात करें, sporting directors, and every
हर एक लेवल पे प्रॉब्लम है. स्टेडियम बिल्ड करना था, वो नहीं हुआ इतने सालों से. फ्रंटो शर्ट स्पॉन्सर नहीं आता. लेट्स नॉट जोक अबाउट वो नाके से 40 प्लेयर लेके घुसा दिए. वो तो बात सही थी, आकाश भाई ने बोली थी. वो जो आए 40 लोग, उसमें से जेन्युइन अभी लग रहा है कि प्रॉमिस में से ना ढंग के 3 लोग ही है. आपकी फ्यूचर, मैं बोल रहा हूँ यूनाइटेड फैन, हैड बैक ऑन, हमें लगा हमारे फ्यूचर पर अभी भी बहुत क्लाउड्स है, बहुत कम प्लेयर्स है, इंजरीज है, बट यू हैव 45 प्लेयर्स एंड स्टिल 2 ऑफ देम लुक लाइक दे कुड डू समथिंग फॉर यू. हाँ, अभी तो प्लेयर्स इन लोग जो लेते यंग है, अनप्रूवन है, तो ये लोगों ने कुछ प्रूव नहीं किया बिगर स्टेज पे, तो ये यंगस्टर्स के साथ गैम्बल करते हैं. मुझे नहीं लगता ये जो साइनिंग्स होते हैं, दिस इज फॉर फुटबॉलिंग रीजंस. आई थिंक दिस इज फॉर फाइनेंशियल. इट्स फॉर फाइनेंशियल. हाँ, एज एंड वेज एक ब्रैकेट है, आई थिंक उसमें सूट हुआ तो वहाँ जाओ. फिर प्योर प्रॉफिट में अगर सेल कर सकते हैं उसको. एकेडमी प्लेयर्स का क्या हो रहा है, उनको सेल कर देते सीधा. पहले तो कैसे चेल्सी इंटीग्रेट कर रहा था थोड़ा, माउंट को, टैमी इब्राहिम को, हडसन ओडाई, वो सब आए थे. अभी क्या हो रहा है, एचएम पोंग आया है, वो भी जाने वाला है. गैलेगर को, पोचेटिनो गैलेगर को इतना इंसिस्ट कर रहा था कि इसको रखो, बट स्टिल सेल कर दिया प्योर प्रॉफिट के लिए. तो अगर इन लोग प्लेयर्स फुटबॉलिंग पर्सपेक्टिव से नहीं लेंगे तो यही होने वाला है ना. प्लानिंग नहीं है कुछ. मैनेजर एक आता है, उसके हिसाब से अगर प्लेयर लिए भी तो मैनेजर निकल जाता है 6 महीने में. तो जो सेट ऑफ प्लेयर्स लाए है उसको एक न्यू मैनेजर देते हो, जिसका आइडियाज में भी फिट नहीं होते रहेंगे प्लेयर्स. अब तुम कोल पामर को देखो, ऐसा प्लेयर ऐसा परफॉर्म कर रहा था, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड था. 100%. रोसेनियर के अंडर क्या कर रहा है, हॉट पामर हो गया. अभी ये सब आर्सेनल वाले, टॉटनम वाले भी क्या क्या बोल रहे हैं, मैन यूनाइटेड वाले बोल रहे हैं ही इज परफॉर्मिंग, ये डेलिबरेटली खराब परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसको यूनाइटेड आना है वापस. चेल्सी और स्टैमफोर्ड ब्रिज के ऊपर, लाइक आई सेड, डार्क क्लाउड्स एवरीवेयर. डार्क क्लाउड्स हैव आल्सो मूव्ड ऑन टू लेस्टर सिटी, जो एग्जैक्टली 10 साल पहले improbable 5,000 to 1 odd winner of the Premier League, beating out obviously none other than Arsenal and Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur on the verge of relegation. Leicester League 1 straight, मतलब it's looking impossible, right? And Coventry आ गई. देखो फुटबॉल इन cyclical है. 25 years back वो बंदा था ना, we will be back. Yeah. And he was back. And at the same time, Leicester, you would have thought FA Cup जीती 5 साल पहले. Yeah. यार football is scary. Tottenham genuinely banter. Fuck the banter, boss. Tottenham could really get relegated. Yeah. De Zerbi is here and they just clipped a draw. Scary times football में. I think so. Leicester का तो यार genuinely, like I think we, for the backstory that people know, I mean the owner is trying to do everything. I mean the owner, बहुत ही ऐसे कम फुटबॉल में क्लब्स हैं बचे हुए हैं आज के टाइम पे जिसके ओनर रियली अप्रिशिएट करते हैं क्लब को. Like they try to do everything in power कि यार you know बाकियों के लिए मैं बोलूँगा कुछ क्लब के जो ऐसे ओनर्स हैं वो सिर्फ उसको एक मिल्किंग काऊ की तरह यूज़ करते हैं. बट कौन से? चेल्सी ना? नहीं, वो तो दे रहे हैं फिर भी, जो निकालते हैं पैसा क्लब से. बट Rhymes with blazer. और जॉन इब्राहिम से भी. बट एनीवे आई थिंक लेस्टर का सुन के काफ़ी दुख हुआ. आई थिंक एंड मैं ये चीज़ पढ़ रहा था, सेम विद लेस्टर, सेम विद टॉटनम, दैट वंस यू आर रेलीगेटेड, लाइक इवन द सिचुएशन बोथ क्लब्स दैट दे आर इन, भाई वापस आना इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज यू सी द चैम्पियनशिप, यू सी जो भी नीचे बॉटम ऑफ द टेबल है. लाइक देर आर सो मेनी क्लब्स जिनकी हम स्टोरी हम लोग बात करते हैं, हम लोग वीडियो बनाते हैं, दे यू नो रेलीगेट एंड दे नेवर कम बैक. मतलब मैं अगर 10-15 साल से अगर जो मैं जितना फुटबॉल देखा था, लाइक ब्लैकबर्न रोवर्स भाई 94 चैम्पियंस, 93 चैम्पियंस भाई, 2010 तक दे वर रेगुलर यू नो प्लेइंग प्रीमियर लीग, दे गॉट आउट एंड दे हैव नेवर कम बैक अगेन. ऐसे कितने सारे क्लब्स आप नाम कर सकते हो जो शायद एक बार प्रमोट होके आ जाए एंड देन इट्स जस्ट 3 spots दैट आर लेफ्ट, राइट. आप 3 क्लब ऊपर आ सकते हैं. सो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट लेस्टर के लिए भी एंड सेम विद टॉटनम हॉटस्पर एज वेल. टॉटनम का तो मतलब अलग ही केस हो जाएगा, लाइक इफ दे गो डाउन बिकॉज उनका स्टेडियम का पूरा रेनोवेशन का होता है, उनको डेट होने, प्लेयर्स बेचने पड़े शायद टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट. एंड आई थिंक डिस्पाइट एवरीथिंग, मतलब एंड में तो मैं यही बोलूँगा कि 6 पॉइंट शायद सिटी को मिल जाएंगे टाइटल के लिए, क्योंकि हमेशा हम तो 6 पॉइंट ले लेती है टॉटनम हमसे हर साल हर सीजन. बट मे बी I don't know, man. Like that's why, like I think football is very, like you say, it's gonna be tough. Let's see. I hope they survive. But ऊपर भी West Ham बैठी हुई है, वो भी एक you know it's a legacy club that you can say. तो देखते wait and watch है 2-3 सीजन में. Like Tottenham की स्टोरी है ना, like जो इकारिस की स्टोरी है बेसिकली, if you get too close to the sun you might burn.
तो जर्मनी में भी शाल्के और अभी वुल्सबर्ग भी शायद रेलीगेट हो सकता है, मतलब एट द सेम टाइम। और मुझे याद है ला लीगा भी जब भी कम्पिटेटिव था 2010 वगैरह के आसपास, मालागा जैसा क्लब, दे वर होपिंग फॉर सो मच गुड थिंग्स, बट वो लोग भी बैंक्रप्सी में चले गए और उसके वजह से जो अभी ला लीगा में जो स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल रूल्स है वो एक एग्जाम्पल सेट हो गया। टॉटनहम का भी यही केस हो सकता है एंड कमिंग बैक इन द प्रीमियर लीग बहुत मुश्किल है। तो वो ऐसा है कि यू वांट टू फाइट फॉर द लीग एंड एवरीथिंग, बट उसमें आप कितना खो सकते हो इसका आपको कुछ आइडिया नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी रेलीगेशन पे बैठे तो वो इकैरस टचिंग द सन वो वाली स्टोरी है बेसिकली। और लेस्टर पे मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मतलब रेलेवेंट टू फुटबॉल भी नहीं, मतलब ऐसा कोई भी इंसान रहेगा जो अपनी लाइफ में गिरा हुआ रहेगा उसको सुनाने के लिए एक स्टोरी है, मतलब कि 5000:1 ऑड्स, मतलब उस ऑड्स पे वो क्लब खेल गई। मैनेजर सैक हो चुका है, कुछ वाहियात, मतलब अगर ऑनलाइन कोई कनेक्ट में रहेगा उस टाइम पे उसको पता रहेगा कि एक्चुअली क्या हुआ था वो होटल में और क्या केस हुआ था, इस वजह से उसके बेटे को हटा दिया और मैनेजर को हटाना पड़ा। वहाँ से क्लॉडियो रानिया को लाना, वो हर डिसीजन राइट जाना कि रियाद माहरेज को राइट विंग पे ऑपरेट करवा देते, कांटे को लाते, ऑल अननोन कमोडिटीज़ बाय द वे, और उधर से लीग जीतना। बाय द वे सबको पता था व्हाट्स कमिंग एट देम। एक वाड़ी भागने वाला एक स्ट्राइकर है पागल, ही जस्ट स्कोर गोल्स, एक बड़ा लॉन्ग बॉल आएगा, वो फिगर आउट करने में भी प्रीमियर लीग उसको 3-4 महीने लग गए। बाद में देवर स्टटरिंग एंड देन वो चेल्सी ने टॉटनहम के अगेंस्ट वो जो परफॉर्मेंस दिया बाद में, मतलब तुम लोग के वजह से वो लोग टाइटल जीते थे बाय द वे। तो ऐसे स्टोरीज वापस फुटबॉल में कभी होंगे नहीं एंड नाउ दे आर सिटिंग इन लीग 1, तो इट फील्स रियली सैड। आई से दिस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल फुटबॉल फैंस आई बिलीव। तो ट्रू, आई थिंक एज फुटबॉल बिकम्स मोर, मैं अनसीरियस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसे आजकल हम तीन की बात कर सकते हैं यहाँ पे, द वे वी वर बॉट अप वॉचिंग फुटबॉल, और जो आज ट्रांजिशन हुआ है इट्स मोर अबाउट short format games and watching and enjoying. I don't know if we'll see these stories again because the players also coming in to play for these clubs don't have that same, I would not say passion, गलत बात है, या hunger गलत बात है, obsession. Obsession to beat the odds, obsession to be hungry, obsession to keep going. And I felt Leicester with Ranieri found the right combination of obsession. आई थिंक लेस्टर का एक स्टोरी मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ। एक बहुत, ऑफकोर्स वो जब लीग जीते थे तो बहुत ही रोमांटिक था और मतलब इमोशनल था सबके लिए। Everyone was celebrating. एक इमोशनल स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं यूके गया था 2013। सो मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड मूव टू द यूके 1995, तो वो कैब ड्राइवर थे उधर लेस्टर में। सो और वो लेस्टर का हर एक मैच देखने जाते थे। एंड तो जब मैं गया उसके बाद आई स्टेड इन टच विद हिम, माई डैड्स फ्रेंड। एंड 2014 में उनको कैंसर हो गया और लाइफ एंडिंग कैंसर हो गया। सो मैं उनसे व्हाट्सएप पे बात करता था एंड ही वाज, उनको डॉक्टर ने एक टाइमलाइन दे दिया था कि इसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू लिव, और वो तभी था जनवरी ऑफ द सीजन जब वो लीग जीत रहे थे। तो उन्होंने बोला था कि भाई, मैं उनसे बात की थी कि मेरे को मई तक जिंदा रहना है, बस मेरे को देखना है कि मेरी टीम एक लीग जीतना है, बस देखना है। एंड ही डाइड 3-4 days आफ्टर दे वन द लीग। सो मतलब इतना मेरे को लेस्टर के बारे में मैं जब सोचता हूँ मेरे को हमेशा अंकल याद आते हैं। सो आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स यार कि फुटबॉल ऑफकोर्स हम लोग हंसी मजाक करते हैं, बट लेस्टर का जो स्टोरी है जैसे आप भी बोले, इट्स जस्ट क्रेजी, वो वापस नहीं हो सकता। एंड दे, जैसे ग्रीस तो यूरो जीता, वो भी बहुत ऑकवर्ड था, वियर्ड था, बट लेस्टर वन अ लीग भाई, यू नो, लाइक टू डू इट in 38 games, and now that they are in the 3rd division of English football, it's sad भाई कि how and what they've been through भाई। उनके ओनर भी हेलीकॉप्टर वाला सीन, it was so bad, and now they are in this position। and Spurs का I just want to say कि you know, when you try to punch above what you are, you have to be very careful कि आपको, मैं ये नहीं बोलूँ कि स्पर्स की औकात नहीं, बिल्कुल नहीं, स्पर्स बहुत बड़ा क्लब है, बट यू आर, व्हेन यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, आपको प्रोसेस बहुत लंबा रखना पड़ेगा। जैसे आर्सेनल ने 7 साल वेट किया है ये लीग जीतने के लिए, तो स्पर्स का प्रोसेस और लंबा होगा मेरे हिसाब से। दे चेंज टू मच। And sacking Ange was like the boiling point, man. I mean, एक मतलब यार मानस में तेरे को, तू कभी कुछ नहीं जीता, ठीक है, मैं तेरे को आके कुछ दे दूं और तू आके मेरे को मुक्का मार दे वापस, तो भाई मतलब तेरी गलती है ना भाई,
the emotions took over, you know, the board. Yeah. फेयर इनफ. अच्छा, एक्चुअली आपने गुड फैक्टर कर दिया यहाँ पे लेस्टर के बारे में. मे बी दे माइट कम बैक सूनर रादर देन लेटर, बट इट विल बी अ लॉन्ग अपहिल रोड. वैसे देखो रेक्सम है, बैक टू बैक प्रमोशन लेके आ रही है ऊपर. शायद वो भी आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर प्रीमियर लीग में. वी डोंट नो. व्हाट वी नो इज दैट इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल करेंटली मनी टॉक्स. ठीक है, कंट्रोलिंग मनी, कंट्रोलिंग प्लेयर्स, कंट्रोलिंग लीग्स. बायर्न म्यूनिख पे आते हैं उसके बाद. बायर्न म्यूनिख irrespective whatever it is has been winning and they won another league. Congratulations Harry Kane. Well done to Bayern Munich. Bayern Munich के fans नहीं यहाँ पे, but still well done. Still a great achievement. Vincent Kompany, Harry Kane ridiculed again at Tottenham. Tottenham fans, no problems. Harry Kane is gone. Harry Kane के पैसे से we will do a Philippe Coutinho. हो गया खत्म वहाँ पे. And look at that guy at Bayern Munich. Lethal. Olise lethal. Luis Diaz lethal. Musiala finally back. It is a good team of youngsters. It's a good team of experienced players. Good win. एग्जैक्टली मतलब एवरीबडी विल से कि बायर्न म्यूनिक बुंडेसलीगा जीत गई, कोई बड़ी बात नहीं है, दे विन एवरी टाइम. बट बायर्न म्यूनिक इज अ प्राइम एग्जांपल फॉर क्लब्स लाइक चेल्सी, टॉटनम और बहुत सारे क्लब्स जो सफ़र कर रहे हैं और जो मैनेजर्स को कंट्रोल नहीं दे रहे एंड दे आर टू मच इंटरफियरिंग इन द स्पोर्टिंग डिसीजंस. बायर्न म्यूनिक इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ हाउ टू डू इट. बिकॉज यू सी विंसेंट कंपनी, मैंने लास्ट एपिसोड में भी बोला था, बायर्न म्यूनिक का एक नया नैरेटिव सेट हो गया था आफ्टर बीटिंग रियल मैड्रिड दैट दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. बट दे आर नॉट द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. इफ यू लुक एट देयर सबस, आधे प्लेयर्स तो पहचान के ही नहीं है. बंच ऑफ किड्स जस्ट लाइक हांजी फ्लिक इज डूइंग विद दैट. So that is what is essential. Like you have a good manager, you have those 15 players who are ready to play for you, and you can win every competition. अभी Konrad Laimer, Stanisic, ये सब players को कौन जानता था? But using those players, he won against Real Madrid. He is probably going to win the Champions League as well. Most hot favorites. Bundesliga तो जीत गया. So this is a prime example of how a football club should learn, and almost everyone can learn from Bayern Munich and from Vincent Kompany as well. क्योंकि अब लेट्स बी ऑनेस्ट, कमेंट्स पास करना कितना इजी है यार कि बोनली के साथ रेलीगेट हो गया, हाउ इज ही गेटिंग बायर्न म्यूनिक का जॉब. बट लुक एट द एक्सपीरियंस ही हैज़ हैड एज अ प्लेयर ओवर सो मच इयर्स फॉर सिटी. मैन सिटी जैसी टीम को इतना जिताना. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मैन सिटी का रिवाइवल कंपनी के अंडर ही शुरू हुआ था. सो ही डिड इट एज अ प्लेयर, ही इज़ डूइंग इट एज अ मैनेजर. एंड मोस्ट लाइकली मतलब हम सबको शायद पता ही है कि आफ्टर पेप गार्डियोला इट इज चांस की विंसेंट कंपनी विल कम बैक टू सिटी ऑल्सो. सो ओवरऑल आई विल जस्ट सम इट अप कि बायर्न म्यूनिक इज अ प्रॉपर एग्जाम्पल फॉर एवरीवन हाउ अ क्लब शुड रन. एंड जिन लोगों ने आई थिंक ऑल और नथिंग भी देखी होगी मैन सिटी की, तो उसमें बर्नार्डो सिल्वा इनफैक्ट सेड कि भाई कंपनी कैन इवन बिकम अ प्रेसिडेंट, यू नो, इफ यू वांट टू. ही इज सो इंस्पिरेशनल, ही इज सच अ लीडर इन द ड्रेसिंग रूम. दिस इज बैक इन 2019. बट आई विल से जो बर्नली का भी तूने बात किया ना, आई थिंक बर्नली के बाद लोगों ने ना काफ़ी ज़्यादा एक उसको कंपनी को एज अ मीम की तरह यूज़ करा कि यार अरे देखो बर्नली मैनेज करके जा रहा है, यू नो, ज़्यादा कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं है. व्हाट आर हिज क्वालिफिकेशंस टू इवन यू नो मैनेज अ क्लब लाइक बायर्न म्यूनिक. तो वहाँ पे आई ऑल्सो हैव लाइक दिस ट्वीट जिस दिन हुआ था, मैंने लिखा भी था ट्विटर पे कि यार whoever is writing this, you know, they are gonna regret it one day. मैं like the and उस कमेंट पे अगर आप देखोगे फेब्रिजो नीचे everyone was like mocking company. तो I just feel अब now after 2-3 years you see you know what Pep saw in him. जब because Bayern Munich called up Pep asking about कि यार you know should they consulted him कि should, you know, we are going for another manager, who should we go for. So it was Pep who said कि यार, you know, take in Kompany. And भाई like Kompany is a PhD scholar. और उसका भाई उस बंदे ने उसका जो सब्जेक्ट था वो यही था कि भाई हम होम टीम, जब आप होम में खेल रहे हो तो उसको हम एडवांटेज कैसे बना सकते हैं. मतलब जो बंदा फुटबॉल के बारे में ये सोच रहा है और ये सारी चीज़ें, इस एलिमेंट इस एक्सटेंट तक चला गया, हाउ इज गोना फेल. लाइक ठीक है, 1-2 बार आप शायद मे बी आप ट्राई करोगे, आप फेल होगे, बट समवन हु इज थिंकिंग अबाउट दैट माइन्यूट डिटेल्स, मैन, इट जस्ट टेल्स यू कि वो किस क्लैरिटी के साथ सोच रहा है. एंड नाउ वी आर ऑल सीइंग दैट. मुझे एक चीज़ बताना, अगर पता चले तो, वो बर्नली के साथ खेला, रेलीगेट हुआ, इज़ अ डिफरेंट थिंग. वो बायर्न में आके वो सब कर रहा है. मुझे बताओ, ही हैड द स्क्वाड विद बायर्न. लोग बोलेंगे अरे इसको तो बायर्न में स्क्वाड मिल गई. टॉटनम हैड दी स्क्वाड, अभी नीचे है. रोजिनियर के पास भी स्क्वाड थी, कुछ हुआ नहीं, फ़र्क नहीं पड़ा. वो बर्नली, वो कंपनी का मेंटालिटी है जो बायर्न में लेके आया है. वो ऐसे नहीं है कि बायर्न जीत रही है चलो लगे हाथ में अपना कैबिनेट भरता हो. वो मेंटालिटी की वजह से दे हैव बीटन रियल मैड्रिड. और वो जो ब्लैकबर्न रोवर्स वाला उनका कंपैरिजन था ना, वो एकदम एक्यूरेट. उसने बोला कि दैट वाज द टफेस्ट गेम उस मेंटालिटी के हिसाब से, कि मैं वो मेंटालिटी, मैं मैड्रिड वाली मेंटालिटी में लेके आऊँगा. वो मेरा सबसे टफेस्ट था कंपेयर टू दिस. मैड्रिड को एक्चुअली उसने सबसे टफेस्ट बता दिया. तो वही है, लोग उसको डिस्क्रेडिट करते हैं, वो सब
अनफेयर है उसके लिए, वो जीत रहा है, बहुत परफेक्ट है. अगर वो PSG को बाय चांस हराता है, विच ही इज केपेबल ऑफ, उसकी स्क्वाड केपेबल है अभी के लिए, तो वो चैंपियंस लीग जीत सकता है. और एक चैंपियंस है ऑलमोस्ट, मतलब बनने ही वाले हैं, बार्सिलोना. यहाँ पे हमारी यहाँ पे जो क्रिएटर पैनल है, सॉरी एंड फैन पैनल है, फैन पैनल बोल रहे थे कब से कि एल क्लासिको तक जाएगा ही नहीं. एग्जैक्टली. It will not reach El Clasico. It will get done before that, and it's done before that. They are 9 points ahead. What do you enjoy करो ना, क्यों इतने टेंशन में हो? नहीं, टेंशन में इसलिए आए क्योंकि कल स्क्वाड के और 2 मेन प्लेयर्स इंजर्ड हो गए. मतलब 9 पॉइंट्स काफी बड़ा लीड है. तुम लोग कहाँ चाहते थे? भाई क्या that's फर्क what पड़ेगा? Arsenal fans also said. 9 point कहाँ से होगा? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ. बट देख लो ना किधर हो गया. अभी कैसा है, 1-2 गेम इधर उधर हो गया, फिर वो एक एल क्लासिको है, वो हार गए. तो यू नेवर नो. अभी लमीन नहीं है, कैंसेलो नहीं है, डियोंग अभी वापस आया है, राफिनिया नहीं है. तो मतलब ये ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ पूरा सीजन ऐसा ही जा रहा है. और इतना ऑन एंड ऑफ होता है ना, तो फिर धीरे धीरे आप एक एक कॉम्पिटिशन से बाहर होते जाते हो. जैसे कि हम लोग चैंपियंस लीग से या कोपा डेल रे से हो रहे हैं. ऑल्दो अभी भी लीड हेल्दी है और 90% चांसेस है कि वो एल क्लासिको एक फॉर्मेलिटी ही होगी. बट देन इट्स फुटबॉल, यू कैन नॉट रूल आउट एनीथिंग. आप 2 ड्रॉज भी कर लो, उधर वो लोग अपने गेम्स जीत गए, तो देन अगेन द प्रेशर शिफ्ट्स बैक टू यू ओनली. बट स्टिल मतलब लगता तो नहीं है, आई थिंक सो वो एल क्लासिको एक नाम का ही एल क्लासिको रहेगा. अभी मतलब अगर अब देखा जाए तो कल का वो जो गोल था वो मतलब फेयर गोल था, फेरन टोरेस ने जो मारा. और उसके बाद उसने मतलब जो सेलिब्रेशन भी किया, तो उसको तो मतलब और दुखी हुआ रहेगा कि यार मैं तो गोल भी मार रहा हूँ, सेलिब्रेशन भी कर रहा हूँ, फिर जो ऑफसाइड नहीं है वो गोल भी नहीं दे रहे. वो इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के आया था कि भाई कुछ लिखा है, कुछ तो अच्छा ही था, अच्छा ही होगा. और उसके बाद में वो रिप्ले में भी नहीं दिखाया, उसके बाद में रिप्ले भी नहीं दिखाया हमको कि भाई क्या है, ऑफसाइड नहीं है. फिर उसको किधर से तो वो फोटो मिला, उसने निकाला, स्टोरी लगाई, ठीक है. तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वो IPL का जो DRS सिस्टम है वो VR से तो मतलब बहुत बेटर है. एग्जैक्टली, लाइक बिल्कुल सही कहा. क्योंकि इफ़ यू सी द लाइक रिप्ले एंड साथ ही साथ वो इमेज देखोगे, तुम क्लियरली देख पाओगे ही इज़ ऑन साइड. और स्पेशली यार फेरन टोरेस का भी जब भी गोल आता है, लाइक इट्स अ सेलिब्रेशन फॉर अस. क्योंकि भाई I'm not saying, क्योंकि भाई he's a phenomenal player. क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने उसको परफॉर्म करते हुए देखा था, लाइक हिज परफॉर्मिंग सो गुड कि हम उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे. बट दिस टाइम लमीन यमाल के गोल के बाद जो गोल आया फेरन का, वो रूल आउट हो गया ऑफसाइड की वजह से. क्लियरली लाइक कोई फैन खुश नहीं था. हम फिर से रेफरी का बोलेंगे, इट्स वजह से लाइक मैंने तो रेफरी का बोलना ही छोड़ दिया. क्योंकि जब भी रेफरी का बोलो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट गलत जुड़ जाता है. बट हमें समझना पड़ेगा कि कई बार गलत डिसीजन होते हैं. अगर गलत डिसीजन होंगे, हम नहीं बोलेंगे, तो कौन बोलेगा यार. तो इट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई गलतियां होती हैं. और VR आने के बाद अगर गलतियां हो रही हैं, दिस इज लाइक नहीं मान सकते कि भाई VR आने के बाद कैसे गलती हो सकती है. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट लमीन यमाल. उसकी इंजरी इट्स नॉट क्लियर कि कितनी बड़ी है. इट्स लाइक इट्स अबाउट द रूमर्स कि हो सकता है कि वर्ल्ड कप के वो स्टार्टिंग वीक्स मिस कर सकता है. बट टू बी ऑनेस्ट, हम कोई नहीं चाहते कि वो इस टाइम पे कोई भी पार्ट मिस करे. इंजरी ज़्यादा सीरियस नहीं होनी चाहिए. एंड अबाउट द लाइक बार्सिलोना, हम बहुत सेफ स्पॉट पे हैं. टू बी ऑनेस्ट इस टाइम बहुत रिलैक्स पे हैं कि हम चैंपियंस लीग में तो है नहीं, तो हमें दिक्कत होने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम ला लीगा ऑलरेडी जीत चुके हैं. एंड लास्ट 2 ईयर्स की परफॉर्मेंस बोलूँगा, उससे पहले की, क्योंकि उससे पहले 2 ऐसे साल थे हम 0 ट्रॉफीज़ के साथ आए थे. तो वी नीड टू लाइक सेलिब्रेट कि हम लास्ट 2 साल में 5 ट्रॉफीज़ ऑलरेडी कर लिया है. कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक है, हाई प्रेसिंग लाइन जो होती है उसको लाइक प्रोटेक्ट करने के लिए चांसेस नहीं रह पाता. हमें नेक्स्ट सीजन के लिए एक स्ट्राइकर को टारगेट करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि वो लाइक जो हमें एक्सप्लोसिवनेस चाहिए ग्राउंड लाइक बॉक्स के अंदर, वो हमें मिल पाए, ताकि हमारे पास गोल कन्वर्ट हो पाए. सो दैट इज़ वॉट आई बिलीव कि हमें चाहिए. बट दैट गोल, इट्स लाइक आई एम रियली नॉट हैप्पी विद दैट डिसीजन एक्चुअली. आपने लमीन यमाल की बात की, तो हमने ये पूरे सीजन में आई थिंक लास्ट एटलीस्ट 25 एपिसोड्स में बैलन डोर की बात नहीं की है. दिस टाइम द बैलन डोर इज नॉट एज हाइप. अभी भी हाइप चालू नहीं है. I'll say because both Barca and Madrid are out. That's why we don't have a clear favorite. No, That is a true. Actually, Bro, it's a PR award. see, What else you expect? The 2 biggest fan bases. मैं यहाँ पे आके I'm not in delusion, ठीक है. I know for everyone in this room knows कि भाई it's a PR award. It decides on vote. अगर आप पिछले 5-6 साल का भी देख लो, अपार्ट फ्रॉम द रॉड्री वन, वो तो मैं खुद सरप्राइज था कि भाई रॉड्री को कैसे बैलन डोर मिल गया. इस सीजन का बैलन डोर वुड बी इंटरेस्टिंग, बट
अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू वर्ल्ड कप. PSG इज इन द चैंपियंस लीग राइट. अगर फाइनल में लोगों की गोल्डफिश मेमोरी रहती है यार, अभी 3 मैचेस में डेम्बेले ने क्लच कर दिया, जाके वर्ल्ड कप वो जीत गया, तो आई वुड स्टिल से डेम्बेले वुड बी मच मोर फार अहेड देन एम्बापे. बिकॉज एम्बापे के पास अगर कोपा डेल रे भी रहता ना, तो मैं फिर भी मान लेता कि चलो उसको वोटिंग परसेंटेज में मिल जाते. आई थिंक जो प्रणय ने बोला एकदम सही बोला. क्रेडिबिलिटी ऑफ द बैलोन डोर हमेशा लोगों ने क्वेश्चन किया, एंड इट इज जस्ट नॉट कि आपका क्लब ऐसा है इसलिए, बट इट इज जस्ट आप देखो ना यार, मतलब मानिक चंद फिल्म फेयर अवार्ड लगता है, वो सब लोग मतलब सब चल के आते हैं, यू नो, अपनी वाइफ्स के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली इवेंट, एंड इट्स अ नाइस PR थिंग. राइटर्स आर राइटिंग, सेल्फी लेने मिलती है जर्नलिस्ट को अपने फेवरेट प्लेयर्स के साथ, ये सब वही है. अभी लाइक listen, I mean, whoever's won it, they are great footballers. Of course. Everyone who's won it but I just question the credibility of it, and that is why World Cup year में हमेशा World Cup के basis पे होगा. It doesn't matter आप लीग में कैसे खेले, कुछ भी खेले. अगर सिर्फ आप लीग फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर इट हैज टू कम फ्रॉम बायर्न, आर्सेनल और PSG. प्योरली स्टैट्स बेसिस पे थी तो क्विचा क्वारेट्स के लिए का जो सीजन चालू है वो एग्जैक्टली लास्ट सीजन राफिना का चालू था कि हर मैच में 9 रेटिंग 10 रेटिंग, वैसा सीजन चालू है. पर इन लोगों को कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इतना स्टैट्स ड्रिवन फुटबॉल ये लोग देख ही नहीं रहे. इसके लिए अलग से स्टैट्स ड्रिवन अवार्ड्स रखने पड़ रहे, सेल्फ डिक्लेयर, जिसमें इन लोग को मिल जाए. तो बैलेंड और की क्रेडिबिलिटी पिछले 3-4 साल में पूरी चली गई इसकी वजह से. स्पेशली वो मेसी का हालैंड वाला बैलेंड और जब से गया तब से तो बहुत ही ज़्यादा. बायर्न ट्रेबल भी जीत जाए, बायर्न ट्रेबल भी जीत जाए, हैरी केन का नाम आना चाहिए. बट अगर जब बायर्न ट्रेबल जीत जाए और फ्रांस वर्ल्ड कप जीत जाए, they will forget Harry Kane in the top 10, and that's what I see happens. But they will just look at Dembele because something with PSG, he still made it to some final. या Olise का नाम लेते हैं, then I'll be like, finally there is some justice. Olise कभी नहीं जीतेगा because he is not sexy enough image wise. That's where we go. That is why Rodri was so refreshing भाई कि DM को मिल गया भाई. Anyway, guys, आप please comments में डाल देना what do you think about the Ballon d'Or nominees for this year? Who's going to be on top? Is it all just based on the World Cup like our panelists have said? या finally maybe कुछ ढंग के common sense वाले बंदे decide करेंगे. But now it's time for the rivalry face-off. Let's go. फटाक से रूल बोल देता हूँ एक बार. यहाँ पे 4 राउंड होते हैं. Third round is multiple choice. In multiple choice you cannot steal. If your steal is still left till the end. सही steal किया तो 2 points, गलत steal किया -1. 3 पास दोनों बाजू, सही पास किया 0.5, गलत पास किया no negatives. In general if you get the answer right, it is 1 point and 1 point. अभी भी creator leaderboard पे या rivalry leaderboard पे, sorry, you guys are leading, the creators are leading. Fans are catching up though. It is currently 17-15. Oh, even if we lose, it's okay. No pressure. No pressure. Arsenal mentality. Resign to second place. Are you ready, Manas? Which was Fabio Cannavaro's first club professionally as a player? Club. You guys know? नहीं. I'm taking a wild guess. Parma. Decent guess, but the wrong one. Napoli. Oh. But I saw you thinking where you went. अभी भी 0 है यहाँ पे. सुयोग क्लच कर दो, बहुत टाइम से नहीं हुआ है. Who is the last player to be sent off in a UCL final? Sergio Ramos. Juventus. Juan Cuadrado against Sergio Ramos in the UCL. मतलब यहाँ पे भी मस्त ऐसे शॉट लग के रिबाउंड हो गया. Please, camera sir, sir, please focus on the disappointment on his face. Anyway, we are at 0-0. Pranay, on to you. चलो. How many UCL finals has Lionel Messi played? 3. टील बोल दिया है और मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है चेहरा देख के इसका. 3. 3 is the right answer. स्टील सही किया, ऑलमोस्ट हक दिया यहाँ पे, but just like that somehow, like Arsenal have left them in the race, he was in the race. Anyway, you can now make it 3 after that steal, okay? Who is the kit sponsor for Coventry City? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bro. अच्छा guess, we are good. Try Hummel. Hummel है. It's okay, not bad. Hummel, not bad. They still remain on 2 points. On to you, Harshit. Which team plays their matches in the Mestalla? Pass. Valencia. Valencia is the right answer. Also, fun fact, the steepest stadium in Europe, just about beating the odds and the UEFA regulations. Yeah.
सही पास किया वहां पे. They are still on 0.5 though. One pass done here. They have their steal and 2 passes left. All 3 left for you. When Man City beat QPR 3-2, who scored City's first goal? जॉलियन लेस्कट. Julian Lescott नहीं था. It was Zabaleta. अच्छा वो डिफेंडर पे गए. I was gonna steal and say Zeko, bro. Zeko second Zeko goal. second. At the end of round 1, the fans remain on 2. The creators are on 0.5. They have a steal left. Okay, Manas, on to you. On how many different occasions did Kenny Dalglish manage Liverpool? 2. 2 is the right answer. Kenny Dalglish has managed Liverpool twice. They are now on 1.5. Who was the highest goal scorer for Barcelona before Messi? पास. Pass बोल दिया. Paulino Alcantara. Cesar Rodriguez. After that pass, the fans still remain on 2. You're on 1.5. You can make it 2.5. The Gores is a nickname for which Indian football club? FC Goa. FC Goa. FC correct. But just like that, they've taken the lead. They're on 2.5 while you guys are on 2. In 2013, in Mourinho's second spell at Chelsea, which player did they steal from Tottenham? Willian. Wow! यहाँ पे कुछ बोलूंगा भी नहीं. Amazing ball knowledge. Well done. Well done. Well done. They have gone on to 3 from the correct answer in the lead, but this is 2.5. You can make it 3.5. Let's go, Arshit. What is the jersey number of Casado at Barca? Which idea? 8. The right answer is 17. No stress, Arshit. No stress. You guys are at 2.5. You are on the cusp of making it 4 for you guys. Who was the captain when Arsenal last won the Premier League? Steal. अरे खत्म ही नहीं करके दिया. Steal. You all heard the question? I'm not going to repeat Yeah, it. we heard the question. Last time Arsenal won the Premier League, who was the captain? Patrick Vieira. Of course. Steal done right and they've taken the lead. Let's go. They have taken the lead. They're on 4.5 and you guys are on 3. But the steals are done. You are done with 1 pass. You guys are done with 1 pass. Okay, दोनों 2 passes है. So we now enter round 3 with Manas. This is multiple choice. This can pass, right? You can pass in everything. हाँ. ठीक है. Which stadium has hosted the highest scoring game in the history of the Premier League? Ellen Road, St. Mary's, Fratton Park or Dean Court? I will go for St. Mary's personally because I think Southampton का मेरे को 9-0, 9-1 याद आ रहा है. Very good try. Confusion सबको होता है St. Mary because of Southampton, but the right answer is Fratton Park. Portsmouth versus Reading 7-4. But Golden Premier League era वाले games है. They remain on 4.5. You all are on 3. You can make it 4. Which of these teams have never played in the La Liga? Deportivo La Coruña, Racing Santander, Quetta या Huesca? Quetta. सही जवाब. Well done. Ball knowledge on point. Like that, they are on 4 points. Pranay bhai, all are still leading at 4.5. You can make it 5 points. Let's go. Which player has captained an English team to the league title in 3 different decades? Options are Roy Keane, Tony Adams, John Terry, Ryan Giggs. Roy Keane. I'll go with Roy Keane. Mr. Arsenal, Tony Adams. Ooh. They are still in the lead though at 4.5, but now you guys can make it 5. Currently in the Serie A, who is leading the assist charts? Yildiz, Barella, DiMarco, Nico Paz. Barella. DiMarco. You guys remain on 4. You guys are on 4.5. Harshit bhai, you can make it 5.5. Chal, do it. Come on, Harshit, you can do it, man. Come on. Which was the first club to feature a front jersey sponsor in Europe? Kettering Town, Manchester United, Eintracht Braunschweig or VLF Wolfsburg? Wolfsburg. Correct answer. Kettering is the assumed one. That is in England. The right answer वो 76 में था. Right answer is Eintracht Braunschweig. Jägermeister. बोला ही नहीं जा रहा क्या नहीं. Jägermeister. They remain on 4.5. You all can still make it 4-5. You can take the lead at the end of round 3. Who scored the opening goal for Manchester United versus Newcastle United in the 22-23 EFL Cup final? Marcus Rashford, Jesse Lingard, Wout Weghorst, Casemiro. Casemiro.
सही जवाब है. They've taken the lead for the end of round 3. Damn. We are going to the end. They have made it 5. These guys are on 4.5. We are back to normal question answer. Let's go. How many Golden Boot trophies has Man City won as a club since the start of the PL era? Pass में तेरे need को to कर count, दूं because you should know this. Pass. Yeah. 7. 4. Carlos Tevez, Sergio Aguero and Erling Haaland is 2. Guys, ये बहुत intense हो गया because they remain on 4.5. 4.5. Y'all can make it 6 because you're on 5. Who is currently the head coach of Ghana after being sacked by Oman? पैट्रिक क्लोवर्ट. Nice try. The right answer is Carlos Queiroz. Oman ने dump किया, but he joined Ghana. But they are still leading on 5. You guys can make it 5.5 because they're on 4.5. Let's go, Pranay. Let's go. Sticking to Ghana. अरे Yes, किया. ये तो बहुत tough है bro. Asamo Gyan played for which ISL team? You know this. Pass. Northeast United. सही जवाब. That's the right one. They passed it and leveled it up. Clutch moment. Clutch. Scores are level. Scores are level. It is 5 and 5. But all passes done over here. You guys have 2 passes left. Which former Manchester United player is the most successful manager in terms of trophies? Pass. Laurent Blanc. Clutch has come. Clutch. He's got 5.5. Oh, bhai sahab. What an answer, bhai. You need to get this right to be in the game or they have won it. Yeah, bhai, अभी तो. And you have no passes left. चल हर्षित. Which player has played in a World Cup final for 2 different countries? Di Stefano. The creators have lost it. The fans have won it. The right answer is Luis Monti. Rivalry face-off के पूरे leaderboard पे यहाँ पे they are still leading at 17, but the fans have made it 16 on the scoreboard today. It's 5.5 and 5. बहुत ही मजा आया ये एपिसोड पे. बहुत ही फ्री फ्लोइंग रहा मैं यहाँ पे. This was episode 32 of the Rivalry Room. अगर जो आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लीव अ लाइक right now. Subscribe to the Game On FC. Please hype the video up as well. Arsenal fans के लिए comment section में प्लीज थोड़ी अच्छी बातें करना. नेगेटिव बातें छोड़ दो, वो खुद अपने आप में वैसे भी लड़ रहे हैं. Until the episode is out, keep watching Rivalry Room and subscribe to Game On FC.